So guys, today's session is going to be an important session because in this session we need to configure our desktop or laptop for upcoming projects. So we have successfully completed our Python programming module. We have completed all the 4 data science library. We were discussing about exploratory data analysis, how we can handle the missing data. Now this knowledge is more than enough to get started with machine learning, meaning from today onwards we will be working only and only on projects. Okay, what kind of a projects we will be designing today? I'm going to give you an overview. Okay, and before we start working on those projects, you need to configure your machine, because there are some demos, there are some projects which you cannot execute on Google Collaboratory. Okay, what we need Python installed in our machine, and we need Anaconda Navigator. This Anaconda Navigator will going to provide you a Jupyter notebook. Okay, and we need that Jupyter notebook. So how you can install and how you can set up that Jupyter notebook, if you have that Jupyter notebook, how you are going to use it, in this session I will be explaining you all these. So now guys, the first thing which we need is this Python. Okay, if you guys are using MacBook, Windows or any other operating system, make sure you need to install this Python first. Now how you are going to check whether this Python exists already in your machine or not? It's very simple. Just do one thing, open your command prompt. If you all are using Windows like me, you guys can simply use this command prompt, and here you just need to type Python space hyphen hyphen version. Okay, just type in this a simple command guys in your command prompt, Python space hyphen hyphen version. Okay, and it will going to tell you that currently you are using this version. Okay, but suppose guys, in case if you are typing in this command and if Windows command prompt give you this as an output, Python is not recognized, then guys what you need to do, you need to install it. ओके जब आप लोग अपने CMD में ये सिंपल सी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, यहाँ पर अगर आपको डिस्प्ले हो रहा है पाइथन 3.10.7 या वट एवर वर्जन, दैट मीन्स पाइथन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर मशीन. ठीक है, आप लोगों को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, अगर आपका 3.8 है 3.9 है, डजेंट मैटर, दैट मीन्स पाइथन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर मशीन. इन केस अगर आप ये कमांड लिखते हैं एंड इफ यू आर गेटिंग दिस एज मैसेज, पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एन एक्सटर्नल कमांड, दैट मीन्स यू हैव टू सेटअप पाइथन फर्स्ट. अभी हम सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं, आई जस्ट शो टू यू. तो गाइज इन द चैट सेक्शन आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड यू दिस लिंक. ओके, ये लिंक है python.org का. ओके, एंड यूजिंग दिस लिंक यू कैन वेरी इजिली download the latest version of Python, which is 3.12.1. okay, if you guys are going to use Windows, आपको बस इस पर क्लिक करना है, एक सेटअप फाइल आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी एंड यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट, जैसे हम अदर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, एंड इफ गाइस यू आर यूजिंग MacBook और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, then you can simply click on this option, view the full list of downloads. But I think that majority of us all are using Windows. So guys, I'm going to share this link with you in the chat section. ठीक है, तो guys सभी को ये Python install करने की need नहीं है. Again I am repeating, if you are typing in this command and if you are getting this message, Python is not recognized, then guys you need to install Python first. Okay, now guys please let me know in the chat section how many of you have already installed this Python in your machine. Okay,
और एक बार आप चैट मैसेज में ना मेरे को अपने अपने वर्जन नंबर्स भी बता दो कि 3.9 है, 3.10 है, 3.11 है. प्लीज़ लेट मी नो दिस इन द चैट सेक्शन फर्स्ट. ओके. और जिनके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है गाइस, डोंट पैनिक. मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर दिया है. गो टू दिस लिंक. ओके, क्लिक ऑन डाउनलोड्स एंड सिंपली यू कैन click on this Python 3.12.1. Now guys, not only we need this Python, जब आप Python को install करोगे you should have this as well, PIP. Now what is this PIP guys? It stands for Python Installer Package. Okay, what do we mean by this PIP? It stands for Python Installer Package. In upcoming sessions we need to install some different Python libraries, and in order to install those libraries we need this PIP, Python Installer Package. Okay, तो guys जिनके पास Python installed है, okay, आप command prompt में एक बार लिखो PIP और प्रेस कर दो enter. जैसे आप enter प्रेस करोगे ना, कुछ बहुत सारे आपके पास सामने libraries नजर आएंगी. Okay, you just type PIP and press enter, and here you can see that a lot of libraries will be shown to you. ठीक है, देख सकते हो कुछ बहुत सारी कमांड्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगी. इंस्टॉल, डाउनलोड, अनइंस्टॉल, फ्रीज. ओके, ये कमांड्स अगर आपके पास आ रही हैं सो दैट मीन्स यू हैव दिस PIP इंस्टॉल इन योर मशीन. ठीक है, और इसको इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हो, PIP स्पेस -V. ओके, तो ये आपको वर्जन बता देगी कि दैट आई एम यूजिंग दिस PIP 22.2.2. Okay, now what is this PIP guys? It stands for Python Installer Package, and as the name suggests we are going to use this PIP to install Python libraries. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है PIP भी होना. ठीक है, और जिनको गाइस अभी भी एरर आ रहे हैं तो नो वरी, जैसे ही आप लोग अपने सेटअप में या अपने मशीन में इस पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको पाइथन का वर्जन भी नज़र आ जाएगा और आपको PIP का भी वर्जन नज़र आ जाएगा. ठीक है, ये होगी गाइस हमारी पहली रिक्वायरमेंट. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज देर आर सम डेमोज विच वी कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑन गूगल कोलैबोरेटरी. स्पेशली जो हमारे ऑटोमेशन से रिलेटेड डेमोज रहेंगे, दीज डेमोज वी कैन नॉट एग्जीक्यूट इन गूगल कोलैबोरेटरी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गाइस वी नीड दिस एनाकोंडा नेविगेटर. Now this Anaconda Navigator will going to provide you a Jupyter notebook. Okay, and we will be using that Jupyter notebook for our projects. ठीक है, स्पेशली वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट में, ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट में हम Jupyter notebook का यूज़ करेंगे. अब गाइस जिनके पास ये Anaconda Navigator इंस्टॉल नहीं है, ओके, सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस लिंक टू यू. ये लिंक आप लोग एक बार ओपन कर लेना, और गाइज यहाँ पर ये आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा. बट द फर्स्ट थिंग इज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नीड टू इंस्टॉल दिस पाइथन फर्स्ट एंड देन यू शुड इंस्टॉल दिस एनाकोंडा. नाउ गाइज हाउ यू कैन फाइंड आउट कि हमारी मशीन में ये एनाकोंडा इंस्टॉल है या नहीं है? बहुत सिंपल है. आप एक बार टाइप है टू सर्च में जाइए और आप यहाँ पर लिख सकते हो एनाकोंडा. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ये सजेशंस आ रहे हैं, एनाकोंडा नेविगेटर, जुपिटर नोटबुक. सो दैट मीन्स दिस एनाकोंडा नेविगेटर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय मशीन. बट जिनके पास नहीं है गाइज, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आज में आप लोग अपने मशीन में डाउनलोड और सेटअप कर लेना. ओके, बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस डाउनलोड. इसको भी गाइज बस नेक्स्ट करके आप लोगों को इंस्टॉल करना है. सो इवन दिस लिंक गाइज आई एम शेयरिंग विद यू ऑल इन द चैट सेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनाकोंडा नेविगेटर, क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं एनाकोंडा यूज़ कर रहा हूँ और अगर आप लोग यूज़ करोगे गूगल कोलैबोरेटरी का ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि देर आर सम डेमोस विच यू कैन नॉट एग्जीक्यूट ऑन कोलैब विल गोइंग टू गिव यू इन एरर्स. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस एनाकोंडा नेविगेटर. अभी एनाकोंडा नेविगेटर है क्या गाइज? इट्स अ प्लेटफॉर्म, ओके, विच provides you everything you need to get started in data science. ये आपको Jupyter notebook नहीं, ये आपको और भी different editors provide करवाता है, like Jupyter Lab, Jupyter Notebook, VS Code, using which you can write your Python program. But which one is the best and the popular? The answer is your Jupyter Notebook, because Jupyter Notebook
provides you a collaboratory kind of an interface. ठीक है, अभी तक हम लोग क्या यूज़ करते आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया है गूगल कोलैबोरेटरी. बट गाइस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स what we will be doing is we are going to use this Jupyter notebook. Now guys, those who are going to use Jupyter notebook for the very first time, आप लोग एक बार मेरी स्क्रीन पे ध्यान दो. ठीक है, आज आप ये इंस्टॉल कर लेना. लिंक्स मैंने आपके साथ चैट सेक्शन में फॉरवर्ड कर दिए. द नेक्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ वी कैन यूज Jupyter notebook. इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, Jupyter notebook में गाइस बस एक बात का ध्यान रखना, कोलैबोरेटरी will run on an internet. Okay, that means you need a stable internet connection to work with collaboratory. But this Jupyter notebook guys does not need an internet connection. अगर आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हैं तो भी आप अपने पाइथन के प्रोजेक्ट्स में, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में वर्क कर पाओगे. ओके, दिस इज द benefit of using this Jupyter notebook. Another benefit of using this Jupyter notebook is it will provide you a very nice interface if you guys are working with the video related projects, automation kind of a project. ठीक है, और इस Jupyter notebook में ना कोई भी हमको Gmail की रिक्वायरमेंट नहीं है. वेरी इजीली वी कैन स्टार्ट यूजिंग दिस Jupyter notebook. बट कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है इफ़ यू गाइस आर यूजिंग दिस Jupyter notebook. ये जो Jupyter notebook है ना गाइस, ये आपको एक ब्लैक कलर का कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा. ओके, एंड मेक श्योर जब तक आप लोग Jupyter notebook में काम कर रहे हो, यू डोंट नीड टू क्लोज दिस कमांड प्रॉम्प्ट. ओके, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो Jupyter notebook को जैसे ही ओपन करते हैं ना, इस कमांड प्रॉम्प्ट को वो लोग बंद कर देते हैं. आप गाइस ध्यान से देखो कि इट इज़ लोडिंग द Jupyter notebook ऑन माई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र. नाउ माई डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इज़ क्रोम. आप लोगों का जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा ये उस पर लोड हो जाएगा. इन केस अगर आप लोगों ने एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल किया, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे Jupyter notebook को क्लिक किया, अगर ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रहा है, सो डोंट पैनिक गाइस. आप इस कमांड प्रॉम्प्ट में देखो, यहाँ पर ना आपको कुछ URLs दिए जाएंगे. आप इस URL को कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना अपने ब्राउज़र पे. ठीक है, however this Jupyter notebook will open directly in your default browser somehow. If not, then guys you don't need to worry. ये लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इस लिंक को आप कॉपी कर लेना और पेस्ट कर लेना अपने ब्राउज़र में, एंड वेरी इजीली you can start using this Jupyter notebook. So guys, again I am repeating, whenever you are going to work on Jupyter notebook, please do not close this command prompt. आप simply इसको कर देना minimize. Now guys, you can see this is the interface of my Jupyter notebook. ठीक है, और अब guys हमको क्या करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है and you need to click on this Python 3. Okay, you need to click on new and Python 3. Now guys, see how your Jupyter notebook looks just like your collaboratory. डिफरेंस क्या है कि ये बिना इंटरनेट के भी चलेगा, कोई Gmail की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है यहाँ पर, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो. ओके, बट दिस Jupyter notebook guys, प्लीज़ रिमेंबर इट विल गोइंग टू सेव ऑल योर वर्क इन योर कंप्यूटर. मैंने आपको कोलैबोरेटरी का एक बेनिफिट बताया था कि डेटा बैकअप ऑलरेडी जो जितनी भी नोटबुक्स आपने बनाई हैं, those notebooks will be uploaded directly on your drive. ठीक है, तो अगर कंप्यूटर इन केस आप फॉर्मेट भी करते हो, डोंट वरी, आपका डेटा तब भी सेव रहेगा. बट ये जो Jupyter notebook है गाइस, दिस विल गोइंग टू सेव योर वर्क इन योर लोकल फाइल्स, मीनिंग डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप में, प्रोग्राम फाइल्स में, सी ड्राइव में. सो इफ़ यू आर गोइंग टू फॉर्मेट योर लैपटॉप, देन योर डेटा विल बी लॉस्ट. तो बैकअप कर लेना इन फ्यूचर अगर आप अपने लैपटॉप को चेंज कर रहे हो या फॉर्मेट कर रहे हो. बाकी गाइस आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम इंटरफेस है. दिस इज द टाइटल ऑफ योर Jupyter notebook. यहाँ पर हमारे पास वो .ipynb वाली एक्सटेंशन नहीं है. ओके, यू कैन जस्ट सिंपली click on it and you can rename your notebook. Okay, no need to give this .py or .ipynb extension, just provide a simple name and that's it. Okay, let's say data science batch 1, and guys just simply click on rename. And guys, these are the standard menus which we are going to use a little bit later on. और ये हैं हमारे कुछ icons.
कोलैबोरेटरी में ये आइकन्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपके सेल के ऊपर, बट जुपिटर नोटबुक में दीज आइकन्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द टॉप। तो ये हो गया सेफ। इन ऑर्डर टू ऐड अ न्यू सेल, इफ़ यू वांट टू डिलीट द सेल, देखो यहाँ पे क्लिक किया। इफ़ यू वांट टू मेक अ कॉपी, इफ़ यू वांट टू मूव योर सेल अप एंड डाउन, कोड को रन करने के लिए यू कैन यूज दिस। इन केस इफ यू वांट टू स्टॉप the execution of your program in between, you can stop the kernel, restart the kernel, and then it will going to restart the kernel, and then it will going to give a quick rerun to all your cells. Okay, तो guys ये icons collaboratory में हमको इधर प्रोवाइड होते थे सेल के टॉप राइट पे, बट नाउ इन Jupyter Notebook these icons are here. The benefit of using this Jupyter Notebook is आप इस फाइल को बहुत तरीके से डाउनलोड कर सकते हो. Let me minimize it. तो गाइस इस फाइल को आप HTML में सेव कर सकते हो, .ipynb में सेव कर सकते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जुपिटर नोटबुक पे, बट नाउ यू वांट टू अपलोड दैट प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेटरी, सो यू कैन यूज दिस ipynb. आप अपने वर्क को .pdf में भी सेव कर सकते हो, .py में भी सेव कर सकते हो. फॉर ऑटोमेशन गाइस वी नीड दिस .py फॉर्मेट. जो वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इन केस इफ यू वांट टू प्रोवाइड a front end for your project, you can download your Jupyter Notebook with this .py extension. ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं. जो कॉमनली यूज होता है वो होता है HTML, ipynb and this .py. ओके, एंड देन गाइस सेम है, ये है आपका कोड सेल इन विच यू कैन राइट अप योर पाइथन प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने पाइथन के प्रोग्राम को. दैट्स इट. तो जितना भी गाइस आप लोगों ने कोलैबोरेटरी में पढ़ा था वो सेम कोड आप अपने इस जुपिटर नोटबुक में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गाइस इन सम प्रोजेक्ट्स आई एम गोइंग टू यूज दिस जुपिटर नोटबुक. ठीक है, तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन आई होप सभी को समझ में आ गई हो. मैं चाहता हूँ कि ये गाइस आप लोग अपने लैपटॉप को कल तक कॉन्फ़िगर कर लेना. ओके, बस दो ही चीज़ें मेरे को आप लोगों से चाहिए. यू शुड हैव पाइथन इंस्टॉल्ड इन योर मशीन. CMD पे जाके पाइथन स्पेस हाइफन वर्जन डाल लेना. एंड देन गाइस द नेक्स्ट थिंग विच आई नीड इज दिस एनाकोंडा नेविगेटर. ठीक है, जब आप एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करोगे गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे द फाइल साइज इज मोर देन 500 MB. ठीक है, तो नो वरी, यू कैन इन्वेस्ट योर टुडे. ओके, एंड क्योंकि मुझे आज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है गाइस, आई नीड दिस टुमारो. ठीक है, तो आज आप लोग प्लीज़ अपनी मशीन्स को कॉन्फ़िगर और सेटअप कर लेना, ताकि जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए. ठीक है, एंड गाइस दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. अगर आप लोग मैकबुक यूज़ करें तो ये मैक के लिए भी अवेलेबल है. जो कमांड्स रहेंगी, जो कोड रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा. तो आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो या लिनक्स यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ सेटअप दिस एनाकोंडा नेविगेटर. जब आप इस एनाकोंडा नेविगेटर को गैस कर लोगे सेटअप, देन प्लीज़ चेक कि ये जुपिटर नोटबुक आप लोग एक्सेस कर पा रहे होने चाहिए. मीनिंग फर्स्ट इंस्टॉल एनाकोंडा नेविगेटर. जैसे ही आपका सेटअप हो जाए कंप्लीट, गो टू द विंडोज़ मशीन एंड टाइप हियर जुपिटर नोटबुक. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एक नए टैब पे ओपन हो जाएगा, जो भी आप लोगों का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा उस पर. ठीक है, अब गाइस सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है इस जुपिटर नोटबुक का. लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस कि सपोज आपको मैंने एक फाइल दी और एक सपोज करो एक्सेल फाइल दी और उस एक्सेल फाइल का साइज है 512 MB. ठीक है, 512 MB उस फाइल का साइज है. अब ये फाइल ना गाइस किसी लिंक पर नहीं है. सपोज करो मैंने आपको मेल पे शेयर करी और आप लोगों ने इस फाइल को कर लिया डाउनलोड. ठीक है, अब गाइस जब आप इसको कोलैबोरेटरी पे अपलोड करवाओगे बाय राइटिंग दिस लाइन ऑफ कोड फ्रॉम google.colab import फाइल्स, तो गाइस यहाँ पर ना कोलैबोरेटरी में लगेगा आपके लिए थोड़ा सा टाइम, क्योंकि भैया 512 MB की फाइल आप लोग अब अपलोड करवाने जा रहे हो. तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड दिस प्रोसेस विल गोइंग टू टेक अप अ लिटिल बिट टाइम. बट जुपिटर नोटबुक में गाइस ये कितना टाइम लेगा? हार्डली 1 और 2 सेकेंड्स, क्योंकि बस हमको एक बार डाउनलोड करनी है. ठीक है, कोलैबोरेटरी में क्या करना पड़ रहा है गाइस, पहले हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं फिर हम अपलोड कर रहे हैं.
जुपिटर नोटबुक अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक बार डाउनलोड करना है, फिर गाइस आप इस एक्सेल फाइल को कहीं पर भी सेव कर लो। और ये देखो, ये है आपका मेन पेज ऑफ जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये मेन पेज है आपके जुपिटर नोटबुक का। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ पर अपने उस डेटा सेट को करा लो अपलोड। ठीक है, कोई से भी आप अपना डेटा सेट ले लो और यहाँ पर आप करवा लो उसको अपलोड। ठीक है, जैसी गैस आपकी फाइल यहाँ पर हो जाती है अपलोड, फिर आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। और छोड़ो, आप लोगों को अपलोड भी कराने की नीड नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस कि सपोज मेरी फाइल यहाँ पर ये सी ड्राइव में है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इधर बस ये वाला लोकेशन दे दूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ये करवाया है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं करवा लूँगा पीडी डॉट रीड, जो भी मेरी फाइल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल की CSV फाइल है। और गाइज यहाँ पर अब आप एक लोकेशन दे देना कि सी ड्राइव में मेरे पास एक डेटा सेट का फोल्डर है और यहाँ पर है मेरी फाइल sample.csv। इस तरीके से भी आप लोग अपने फाइल को स्पेसिफाई करवा सकते हो विद दिस कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो these are guys, these are the benefits of Jupyter Notebook and why we need this Jupyter Notebook, because very soon you and me will be working on an automation project and in a web scraping project. This automation and web scraping project, unfortunately we cannot execute in Colab, but we can in Jupyter Notebook. ठीक है, अब गाइस अगर आपको लगे कि यार मैं तो बहुत पुराना पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, सो गाइस विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड आप अपने पाइथन को अपडेट भी कर सकते हो। या और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, आप कंट्रोल पैनल से अपने पुराने वाले पाइथन को अनइंस्टॉल कर लो और जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है python.org, वहाँ से आप एक लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लो। ओके, बट ये इतना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा हमारे प्रोजेक्ट्स में। मेक श्योर कि आप लोगों का जो वर्जन है वो शुड भी 3.9 से तो बड़ा ही होना चाहिए। और अगर 3.7 या 3.8 भी है कोई नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ दिस जुपिटर नोटबुक। तो अगर हम कुछ पुराना मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको एक फ्यूचर वार्निंग दिखा देगा। अब ओके, so now guys let's discuss that why we need these setups. Okay, first of all we have complete our Python programming module. ठीक है, इसके बाद गैस अगर आपको याद हो हमने बात करा था डेटा साइंस के बारे में। इस डेटा साइंस में हमने 4 डेटा साइंस लाइब्रेरी डिस्कस करी थी, numpy, pandas, देन दिस matplotlib। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था seaborn। इसके बाद हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था EDA। फिर मैंने आपको बताया था कि दैट हाउ वी कैन हैंडल द मिसिंग डेटा। ठीक है, अब गाइस ये होते हैं प्री रिक्विजिट। ओके, ये क्या था, ये आप मान के चलो कि दीज आर द प्री रिक्विजिट। आफ्टर ऑल दीज टॉपिक्स ना, नाउ यू गाइस कैन सिंपली एंड वेरी इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। और इस नॉलेज के बेस पे ओके वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते हैं कि मशीन लर्निंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ये इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ओके, इफ़ यू हैव द गुड नॉलेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, गुड कमांड ओवर दीज 4 डेटा साइंस लाइब्रेरी, स्पेशली pandas और matplotlib में, देन गाइज योर जर्नी विल बिकम लिटिल बिट एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। ईजी हो जाता है थोड़ा सा मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझना। बात करते हैं कि कितनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए गाइस। देखो, बेसिक मैथमेटिक्स तो चाहिए ही होगी। ओके, देखो बहुत सारे ना यूट्यूबर्स हैं, ओके इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं, नो मैथमेटिक्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड, यू कैन वर्क ऑन मशीन लर्निंग। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई नो द फैक्ट दैट सम नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज बीन रिक्वायर्ड। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आप मास्टर्स होने चाहिए मैथमेटिक्स में, सम बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज बीन रिक्वायर्ड। द ब्यूटी ऑफ यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग इज कि आपको ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज नहीं लिखने हैं। ठीक है, हमारे पास गाइस मशीन लर्निंग के ना कुछ एल्गोरिथम्स हैं। उन एल्गोरिथम्स को किस तरीके से आप यूज़ करोगे ना, आपको बस ये पता होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मत समझना कि दैट यू एंड मी विल बी राइटिंग some complicated mathematical formulas or equations, not at all. We
need to use machine learning algorithms. Those machine learning algorithms will provide you different methods. How you are going to use those methods for your project, that is the important part. ठीक है, मशीन लर्निंग में ना गाइस स्टेजेस होती हैं. मैं आपको कल ब्रीफली बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, जिनमें से पहली स्टेजेस होती है डेटा गैदरिंग की. अगर डेटा सेट आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कलेक्ट करो. कलेक्ट कैसे कर सकते हो? सर्विस से. आप लोगों ने देखा है जब हम यूट्यूब की वीडियो प्ले करते हैं, यूट्यूब कभी कभी हमसे सर्वे पूछता है कि विच ऑफ द प्रोडक्ट यू हैव मोस्ट likely seen in recent advertisement. तो what YouTube is doing, YouTube is actually collecting the data from you. Okay, तो Google Forms बना सकते हैं, YouTube के सर्विस बना सकते हैं, Instagram पे, Facebook पे सर्विस वाली एड रन करवा सकते हैं. सो वी नीड टू कलेक्ट द डेटा. वैसे भी नहीं करना गाइस, सो यू कैन यूज वेब स्क्रैपिंग यूजिंग विच यू कैन कलेक्ट द डेटा. तो पहली स्टेज होती है डेटा गैदरिंग की. दूसरी स्टेज होती है आपकी डेटा प्रिपरेशन की. डेटा देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो आपको डेटा एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा. ठीक है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जब हम किसी रियल टाइम डेटा सेट के साथ काम करते हैं ना, कभी कभार उसमें क्या होते हैं, अननेसेसरी के कॉलम्स होते हैं. इंटीजर कॉलम्स के अंदर आपको स्ट्रिंग वैल्यूज मिल जाएंगी, या मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी, या आप लोगों को डुप्लीकेट वैल्यूज मिल जाएंगी. तो डेटा प्रिपरेशन में ना हम लोग ये सब तैयारी करते हैं. मिसिंग वैल्यूज हटाना, कौन कौन से कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, टारगेट वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल, ये सब हम सेलेक्ट करते हैं डेटा प्रिपरेशन में. जब आपका डेटा फाइनली प्रिपेयर हो जाएगा तो थर्ड है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट स्टेज है. इसे कहते हैं मॉडल बिल्डिंग. मॉडल में क्या गाइस करना होगा कि दैट वी नीड टू अप्लाई अ सूटेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन अवर डेटा सेट. अब अगर मैं आपको गूगल पे लेके जाऊँ, कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, इस वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है, देखो अगर हम गूगल पे जाएं और यहाँ पर अगर चेक करें कैटेगरीज ऑफ मशीन लर्निंग, तो गाइस बहुत सारी यहाँ पे मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं. ठीक है, अब आप अपने डेटा सेट पे कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कराओगे, दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. ओके, एंड दिस नॉलेज you will be going to gain from your experience. देख सकते हो कितनी एल्गोरिथम्स हैं गाइस हमारे पास. रिग्रेशन है, रिग्रेशन में भी दो कॉन्सेप्ट है, लीनियर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, फिर क्लासिफिकेशन आ गई, फिर डीप लर्निंग आ गई, क्लस्टरिंग है, के मीन्स है, PCA है, SVM है, रैंडम फॉरेस्ट है. वी हैव सो मेनी एल्गोरिथम. तो गाइस ये जो थर्ड स्टेज होती है ना, ये जो थर्ड स्टेप होता है, ये होता है कॉम्प्लिकेटेड. कि आपके पास जो डेटा सेट है, उस डेटा सेट पे आप कौन सी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई करवाओगे. ठीक है, तो हमको यहाँ पर ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन या कोई फार्मूला लिखने की नीड नहीं है. ये देख सकते हो आपके सामने, ये एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास. इन्हीं एल्गोरिथम्स को हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद जो आपकी फोर्थ स्टेज आती है, जब आप इस मशीन, सपोज करो कि आप लोगों ने सेलेक्ट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अप्लाई कर दोगे. वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल टू अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन. क्यों? क्योंकि देखो ये जो sklearn है ना, इसने आपका काम आसान किया हुआ है. देखो ये एक क्लास है, आपको बस क्या करना है कि अपने डेटा सेट पे इस क्लास को यूज़ करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को. गाइस ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास है ना, ये आपको प्रोवाइड करवाएगी कुछ मेथड्स. ओके, उन मेथड्स को आप कर लो यूज़ एंड यू आर गुड टू. आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो. ठीक है, जैसे आप इस फिट को करोगे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो. बट क्या वो प्रेडिक्शंस एक्यूरेट है? अगर एक्यूरेट है तो कितनी एक्यूरेट है? ओके, अगर योर मॉडल इज गोइंग टू गिव यू द रॉन्ग प्रेडिक्शन, तो क्यों रॉन्ग प्रेडिक्शन आ रही है, कितनी रॉन्ग प्रेडिक्शन है? तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट और आ जाता है हमारे मशीन लर्निंग में. बट गाइस वंस द एक्यूरेसी इज एक्सेप्टेबल, कि सपोज करो आपको जो प्रेडिक्शन थी वो मिल रही है मोर देन 80%, अबव 80% कंसिडर एज अ गुड फिट मॉडल. ठीक है, कि मतलब आपका मशीन लर्निंग का मॉडल अच्छा है. अगर 80% तक एक्यूरेसी आपको मिल पा रही है, ठीक है, देन यू कैन मेक द फाइनल प्रेडिक्शन एंड हेंस इट कंप्लीट्स योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट. ठीक, तो गाइस अब ये जो सब आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है, पाइथन, नमपाई, EDA, हैंडल द मिसिंग डेटा, ये सभी अब हम यूज़ करेंगे अपने मशीन लर्निंग में. अब
मैं आपको प्रोजेक्ट से ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हम बनाने वाले हैं ताकि कल आपको कोई डाउट ना रहे। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी विद सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, जो पहली जर्नी अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस, वो हम स्टार्ट करेंगे विद सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्योंकि गाइस यहाँ पर भी ना हमको एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने कहीं से सुना कि रैंडम फॉरेस्ट बहुत बढ़िया एल्गोरिथम है तो चलो सर को बोलते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट पहले पढ़ा दो। नहीं कर सकता, वी नीड टू फॉलो अ प्रॉपर चैनल। तो जब हम बात करेंगे सुपरवाइज की गाइस, सुपरवाइज की भी दो कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी आपको पढ़नी होगी वो है रिग्रेशन। इस रिग्रेशन में भी गाइस आप लोग पढ़ोगे एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन और आप एक पढ़ोगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है ना, ये तीन हमारे पास रिग्रेशन के अंदर टेक्निक है। फिर गाइस यहाँ पर आ जाती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉजिस्टिक। ठीक है, और भी कुछ डिफरेंट मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स हैं। तो गाइस टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 प्रोजेक्ट। ये हो गए हमारे 4 प्रोजेक्ट। हर मशीन लर्निंग में ना गाइस आप बनाओगे डिफरेंट प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देना। कॉलेज अगर आपसे प्रेजेंटेशन लेता है कि ठीक है आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, सो गाइस सिंपली यू कैन शो देम। ठीक है, जब ये लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा तब मैं आपको लेके चलूँगा अनसुपरवाइज्ड पे। अनसुपरवाइज्ड में गाइस हम पढ़ेंगे इसके बारे में ए प्रियोरी। ठीक है, ए प्रियोरी में गाइस हम बनाएंगे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, देखो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, बल्कि आप लोग अपना भी डेटा सेट बना सकते हो लिटरली। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपको एक रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करना पड़े। सिंपल लीनियर रिग्रेशन जैसा कि इसका नेम है ये सिंपल ही होती है। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से आपकी एक्चुअल मशीन लर्निंग जर्नी होती है स्टार्ट। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बनाएंगे कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो 2 आवर्स इन अ डे तो आपने के कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो 5 आवर्स इन अ डे तो आप लोग कितना स्कोर कर सकते हो एंड सो ऑन। फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन में हम एक एचआर डेटाबेस में काम करेंगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक स्टार्टअप बेस्ड डेटा में काम करेंगे। इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन में गाइज हम एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट वेदर अ पेशेंट इज गोइंग टू बी अ डायबिटिक पेशेंट इन फ्यूचर और नॉट। और ए प्रियोरी में गाइज हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, जो आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन या और भी डिफरेंट साइट्स पे देखते होगी। इवन गाइस नेटफ्लिक्स भी यूज़ करता है रिकमेंडेशन। ठीक है, अगर आप लोग कोई कॉमेडी मूवी देखोगे या सपोज करो आपने पूरे हफ्ते नेटफ्लिक्स पे कॉमेडी मूवीज़ देखी तो जो नेक्स्ट मूवीज़ वो आपको रिकमेंड करेंगे वो कॉमेडी से रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम हम बनाएंगे यूजिंग दिस ए प्रियोरी अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, फिर गाइस इस वाले प्रोजेक्ट में चाहिए होगा हमको पाइथन और जुपिटर नोटबुक, जिसे हम कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। ये आप कोलैबोरेटरी पे अनफॉर्चुनेटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हाँ, ये सब हम कर सकते हैं वेरी इजीली। यू कैन वर्क इन कोलैबोरेटरी, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, आप काम कर सकते हो, बट सॉरी वेब स्क्रैपिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, आज गाइस मेरे को आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछनी है। वेब स्क्रैपिंग उन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी जिनको HTML आता है, CSS आता है और जावास्क्रिप्ट आती है। चलो CSS भी हटा लो, जावास्क्रिप्ट भी हटा लो। स्पेशली गाइस अगर आप लोगों को HTML आता है तो गाइस यू कैन लर्न वेब स्क्रैपिंग वेरी इजीली। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बना दोगे ना गाइस जो आप लोगों ने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे कि यार ये प्रोजेक्ट क्या वाकई में मैंने बनाया। लिटरली बता रहा हूँ, बट बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी HTML। तो गाइस बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लेट मी नो, आई होप आप सब IT बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को HTML तो आता ही होगा। ठीक है, तो गाइस कैन यू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि कितनों को HTML के बारे में पता है। ठीक है, इस तो काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ गए कि हाँ HTML CSS बूटस्ट्रैप के बारे में हमको बेसिक नॉलेज है, दैट विल बी एन एड ऑन एडवांटेज। ठीक है, तो ये जो वेब स्क्रैपिंग में इसमें गाइस हमको HTML का प्री रिक्विजिट चाहिए और ये वेब स्क्रैपिंग का डेमो
गाइस वी विल बी परफॉर्मिंग ऑन पाइथन EXE एंड जुपिटर नोटबुक। ठीक है, लास्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा गाइस वो ये रहेगा NLTK। ठीक है, जिसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू कैन वर्क ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये स्पीच रिकॉग्निशन ट्रांसलेशन काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन आप बहुत ईजिली बना पाओगे इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न दिस NLTK। फिर फाइनली में गाइस हम बात करेंगे AI की, डीप लर्निंग की और जनरेटिव AI की। तो गाइस अब से जो हमारी जर्नी रहेगी वो आपकी ये रहेगी। ठीक है, ये वाली जर्नी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग ऑन दिस। ठीक है, तो गाइस दीज आर द प्रीरिक्विजिट। प्लीज आप लोग आज ही में ये सेटअप करें ना, एनाकोंडा नेविगेटर एंड दिस पाइथन EXE।